So this is our lipids. So we were discussing. In case of lipids, so we have discussed the neutral fats part. So today we will discuss the conjugate lipids. Okay, and in conjugate lipids, you are seeing this thing. I will share the screen again. So this is actually what? This is your phospholipid. Fine. So the first heading is actually phospholipid. And what is the importance of phospholipid? Because this is a very, very vital compound. Before the discovery of phospholipid, okay, life was not possible. Why? Because phospholipid is one of the major components of the membranes. And unless there is any membrane, there is no partition. What is the cells? What is not the cells? Suppose I am waving my finger on Ayushi's hand, but I am not touching her. So it is space, 3D space, there is no problem. But if my hand touches Ayushi, that is her body. Understood? So how she tells that is her body? That is there is a skin. है कि नहीं? उसी तरह सेल का क्या है एंड क्या सेल का नहीं है वो डिसाइड करता है बाउंड्री. तो जब तक सेल मेम्ब्रेन नहीं आया तब तक मेरा क्या तेरा क्या. Understand? So that is why one of the most important components for life to have come on earth is phospholipids. ठीक है जी? So beautiful diagram. So we will go into our blackboard, and now so we will go to the blackboard, and now we will define phospholipids. Our first heading is, today we will discuss Roman 2. What is Roman 2? Conjugate or compound lipids. Conjugate or compound lipids. This is lipids plus. So what are these actually? Lipids plus plus non-lipid group. Okay, lipids plus non-lipid groups. Understood? So that is the case. तो इसीलिए now अब ये जो आपका है, so they are of different types. हमने डिस्कस किया था. So what are the different types of conjugate lipids? तो इस पे भी मैसेज कर सकते हैं ना. Okay. Phospholipids. ठीक है. Now what are phospholipids? Lipids plus inorganic phosphate. Okay, lipids plus inorganic phosphate plus some special group will also be there. Some special group will also be there. Okay, so this is the concept of phospholipids. Now, second category is glycolipids. Okay, second category is glycolipids. Now, what are glycolipids? These are lipids plus some or the other carbohydrates. Okay, some or the other carbohydrates. Understood? कोई ना कोई carbohydrates इसमें जोड़ा जाएगा. है? Now, इधर एक नोट है. मैक्स पिटाई पड़ेगा तुमको. Some of the other note क्या है इसमें? तो इसमें नोट है आपका तो sphingolipids. Okay, sphingolipids. Okay, now in sphingolipids, मम्मी रूम ने बांध लो. Sphingolipids का मतलब क्या होता है? These have a special, okay, these have a special
amino alcohol known as Sphingosine. sphingosine. Okay, so these have a special amino alcohol known as sphingosine, and they may be sphingofospholipids. Okay, इसमें दोनों हो सकते हैं, sphingofospholipids और sphingoglycolipids. अंडरस्टूड? तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है। तो इसका मतलब है अगर हम लोग एक फ्लो चार्ट बनाएं तो वो कैसा दिखेगा? तो समझ रहे हो? If you make a flow chart of the same thing, so we will see it like this. तो suppose ये है आपका conjugate lipids. Okay? Now conjugate lipids जो है वो दो तरह के होंगे. फाइन, एक साइड होगा ग्लिसरोलिपिड्स, है कि नहीं? ग्लिसरोलिपिड्स, एंड दूसरे साइड में होगा स्फिंगोलिपिड्स. ओके, सो एक तरफ ग्लिसरोलिपिड्स होगा, एक तरफ स्फिंगोलिपिड्स होगा. नाउ जो ग्लिसरोलिपिड्स है ये दो तरह के होंगे. ओके, एक है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, है कि नहीं? ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, एंड जो बी है ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड्स. अंडरस्टूड? तो ये बहुत लोग नहीं जानते हैं, उनको लगता है स्फिंगोलिपिड अदर कैटेगरी है. नो, स्फिंगोलिपिड में भी दोनों हैं. ओके, तो इसमें भी उसी तरह से दो कंपाउंड आ जाएंगे. दिस इज स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स, एंड जो बी है स्फिंगोग्लाइकोलिपिड्स. क्लियर? सो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है. सो दैट वी विल डिस्कस. और भी एग्जांपल्स हैं बट हमें वो अपने लाइफ में जरूरत नहीं पड़ते हैं, स्पेशली इन योर स्कूल लाइफ. सो आई डोंट वांट टू मेक इट मोर एलाबोरेट. ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको इस तरह से कर सकते हैं. फाइन, फाइन. सो नाउ ये जो है कॉन्जुगेट लिपिड्स, ये आपके ग्लिसरोलिपिड्स हो सकते हैं, ये इस तरह से हैं, एंड ये स्फिंगोलिपिड्स आपके ये दो तरह के हैं. अंडरस्टूड? सो ये हमारा क्लासिफिकेशन है. अंडरस्टूड? सो नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट पेज and we will discuss in detail glycerophospholipid. तो जो हमारा फर्स्ट हेडिंग है that is glycero, okay, phospholipids. So number one, ग्लिसरो, जिसको आप फॉस्फोलिपिड बोलते हो, एक्चुअली वो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स है. इसका कॉमन नेम हम लोग लिख देंगे PL. ओके, तो शॉर्टकट इज PL. नाउ तो व्हाट आर दिस ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स? तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं दे, okay, are made up of, okay, glycerol plus 2 fatty acids plus inorganic phosphate. इसको आप IP या PI लिख सकते हो,
plus Z group. So what is Z group? Some special group. Okay, so some special group. ठीक है जी. So ये हमारा ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स का definition है. So now what we will do? We will make the structure as usual. तो इसीलिए अब हम लोग क्या करेंगे? We will take glycerol. Okay, ये glycerol हो गया. So this is our glycerol plus हम लेंगे fatty acids. Okay, plus हम लेंगे inorganic phosphate. ओके, प्लस हम लेंगे स्पेशल ग्रुप. तो स्पेशल ग्रुप में कोई ना कोई OH तो होगा ही होगा. तो इसलिए हम उसको ZOH से रिप्रेजेंट करते हैं. OH is I am showing deliberately to show the bond formation. Okay, and you know that the easiest thing in biology is to make the bonds. है कि नहीं? So now हम लोग क्या करेंगे? ये बॉन्ड निकालेंगे वाटर. ओके, उसके बाद ये वाटर निकालेंगे. ओके, उसके बाद इसके बाद हम लोग एक और यहां से पानी निकालेंगे. Fine. So now how many waters are lost? 4 molecules of waters are lost. Okay, तो 4 molecules of water loss होता है. एंड उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या है? इसको हम बीच में लिखेंगे CH2O CHO CH2O. ओके, उसमें हम लगाएंगे C डबल बॉन्ड O R1 C डबल बॉन्ड O R2. दिस इज फॉस्फेट. डबल बॉन्ड O, नीचे OH, इधर O. ओ सॉरी, ये हमारा पिंक है. एंड उसके बाद हम लगा देंगे. ओके, सो हम ये लगा देंगे. अंडरस्टूड? सो दैट इज व्हाई इसमें हमारा दिस इज आवर स्ट्रक्चर. ठीक है जी. सो अब ये जो स्ट्रक्चर हमारा बन गया, तो इसमें हाउ मेनी फैटी एसिड्स आर अटैच्ड? 2 फैटी एसिड्स प्लस ये आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, प्लस ये जो है ये स्पेशल ग्रुप. Understood? So this is the structure. Now if you focus on this compound, okay, अगर आप इस कंपाउंड को देखेंगे तो इसमें ये जो पार्ट है ये कांस्टेंट है. ओके, सो दिस पार्ट ये भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहता है. तो ये जो पार्ट कांस्टेंट है, तो इसलिए जो कांस्टेंट
इसको हम लोग क्या लिखेंगे? कांस्टेंट हेड पोलर hydrophilic. See, so many delta minus are there. Okay, so many delta minus, delta minus, delta minus, delta minus. So this is very very hydrophilic. तो ये क्या होगा? लिपोफोबिक. तो कांस्टेंट हेड पोलर हाइड्रोफिलिक लिपोफोबिक. एंड ये जो चीज हमने बनाया है, सो एक ये and a ये. So these two are what? Non-polar tails. Okay. उसके बाद वेरिएबल, क्योंकि ये लेंथ अलग अलग हो सकता है. लिपोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक. फाइन. सो दिस रिजल्टेंट कंपाउंड जो हमने बनाया है, so that is called your phospholipid. Okay, so this is the phospholipid. Any doubts you have, you can ask, otherwise we'll go ahead. No doubts? Have you made this structure? सर हाँ बोलो. सर नॉन पोलर के बाद वो क्या लिखा है आपने? Tail, जो tail. R1 में Non-polars, tails, variable, lipophilic, hydrophobic. इसका उल्टा है और क्या सारा. इसीलिए Yes, sir. जब आप छोटे बच्चे थे, जब आपको प्रियदर्शनी मैडम ने पढ़ाया था सेल मेम्ब्रेन, उसमें कुछ आपने ऐसे बनाया था, है कि नहीं? तो ये क्या है? सो दिस इज द हेड एंड दीज आर द टेल्स. तो 2 tails 1 head. So this is the representation of a phospholipid. समझ रहे हो? तो ये जो मैडम आपको बना के सिखाए थे, ये एक्चुअली इसी का सिंपलेस्ट फॉर्म. ओके, सो दैट इज द कंसेप्ट. Ready? हो गया? सो नाउ अब हम देखेंगे व्हाट इज दिस जेड ग्रुप, है कि नहीं? तो दिस अब हम लोग उसको डिस्कशन करेंगे, ये जेड ग्रुप क्या है. क्लियर? सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हम लोग चले जाएंगे, दिस वी विल राइट. ओके, examples of glycerophospholipids. Okay, examples of glycerophospholipid. उसमें जो सबसे पहला नाम आता है, that is called phosphatidic acid. Okay, नहीं? So the first name is phosphatidic acid. तो phosphatidic acid में क्या होता है? ग्लिसरॉल प्लस 2 fatty acids plus
inorganic phosphate. Okay, so ये है phosphatidic acid. This is the simplest phospholipid, but never found in any living organism. But never found in any living organism. ठीक है? So never found in any living organism. ठीक है जी? In living organisms, some or the other special groups are present. Okay, we will refer it as Z. ओके, ये मेरी मर्जी है, दूसरा लिख सकता है, समझ लो। तो जो फॉस्फैटिक एसिड है ये आपका सिंपलेस्ट फॉस्फोलिपिड, ठीक है जी। नाउ इसलिए उसमें क्या होगा, कोई जेड ग्रुप नहीं होगा। तो कैन यू टेल मी हाउ मच वाटर लॉस्ट? 3. हाँ बोलो। 3. 3, yes, very good. That is called 3 water lost. ना एक बार हम लोग थोड़ा वापस जाएंगे ना। ये जो बॉन्ड्स हमने बनाया है, ओके, इसमें हमने बॉन्ड्स का जिक्र करना रुक गया हमारा। तो ये जो बॉन्ड्स है, ओके, तो ये एक बॉन्ड रह गया, ओके, उसी तरह से ये एक बॉन्ड है कि नहीं? ये कौन से बॉन्ड्स हैं? सो दीज आर ईस्टर बॉन्ड। ईस्टर. बट ये देखो, ये कौन सा बॉन्ड है? COP, ये है फॉस्फोईस्टर। इस Z में भी कार्बन होगा, है कि नहीं? COP, ये है फॉस्फोईस्टर। तो अगर हम दोनों को जोड़ दें तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा फॉस्फोडाइईस्टर। ओके, so suppose if we join the both of them, ये आपका हो जाएगा फॉस्फोडाइस्टर। अंडरस्टूड? तो ये जो बॉन्ड है, the red bonds, so these are ईस्टर बॉन्ड्स, ये हमको मालूम है। फाइन। ये जो बॉन्ड है COP, ये है फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। ये POC, Z में भी कार्बन होगा, ओके, तो ये बॉन्ड भी है फॉस्फो ईस्टर। तो अगर हम, तो फॉस्फो ईस्टर क्या बॉन्ड है? COP। इधर भी फॉस्फो ईस्टर क्या बॉन्ड है? COP। और दोनों को जोड़ देने से क्या बन जाता है? दोनों को जोड़ देने से बन जाता है फॉस्फो डाई ईस्टर। तो इसका फॉर्मूला क्या है? COPOC। 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 अंडरस्टूड? सो दिस इज अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो इसीलिए इन फॉस्फोलिपिड्स देयर आर 2 ईस्टर बॉन्ड्स एंड 1 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो इसीलिए in phospholipids there are 2 ester bonds plus 1 phosphodiester bond. Understood? But अगर हम इधर देखेंगे, सपोज हम नेक्स्ट वाला शीट देखेंगे, इधर कौन कौन सा बॉन्ड होगा? इधर आपका 2 ईस्टर बॉन्ड होगा प्लस 1 फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड होगा। व्हाई? यू नो, बिकॉज देयर इज नो Z ग्रुप। अंडरस्टूड? इसीलिए जो दूसरा POC बॉन्ड है वो नहीं बनता है।
इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। Is there any doubt in this concept? अब यहां देखिए जो COP है, इधर POC है, तो ये है ही नहीं। दिस बॉन्ड, दिस इज नॉट देयर इन फॉस्फोरेटिक एसिड, तो इसलिए ओनली वन फॉस्फोएस्टर बॉन्ड विल बी देयर। क्लियर? चलिए, तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉस्फोलिपिड हो गया, फॉस्फेटिडिक एसिड। अब हम लोग कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ग्रुप लगाएंगे। ओके, नाउ अब हम लगाएंगे क्या? सेकेंड। सो दिस इज सेम, तो फॉस्फेटिडिक एसिड को कॉमन ले लेते हैं। फॉस्फेटिडिक एसिड, क्यों फिर दोबारा लिखने का क्या जरूरत है कि नहीं? तो फॉस्फेटिडिक एसिड प्लस कोलिन मॉलिक्यूल, ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ओके, फॉस्फोलिपिड प्लस कोलिन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू फॉस्फेटिडिल कोलिन। ओके, एंड इसका कॉमन नेम है लेसिथिन। ओके, लेसिथिन which is found in cell membrane, comma, egg yolk. Okay, found in cell membrane, egg yolk, surfactants of lungs, etc. ठीक है, तो फॉस्फेटिडिक एसिड में आपका कोलिन अगर लगा दो तो ये बन जाएगा फॉस्फेटिडिल कोलिन, विच इज आल्सो नोन एज लेसिथिन। ओके, नाउ उसमें आप अगर स्ट्रक्चर देखते हो, ये उसका स्ट्रक्चर है। ओके, सो दिस इज कोलिन, CH2 CH2N, 3 ठो CH3। ओके, तो CH2 CH2N 3 ठो CH3। अगर हम उस स्ट्रक्चर को बनाना चाहते हैं तो वी कैन मेक दैट स्ट्रक्चर ऑल्सो। तो उसमें सिंपली अगर हम लोग, एंड ये एनसीईआरटी में दिया है तो मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं आपके लिए। सो अगेन उसमें ग्लिसरॉल होगा, CH2O CHO CH2O। ओके, 2 फैटी एसिड होंगे, R1। ओके, 2 फैटी एसिड होंगे, R1 R2। कोई R1 R2 सेम, ये सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। ओके, सो दिस मे बी सेम और डिफरेंट। ओके, नाउ उसके बाद हम लगाएंगे POH, एंड अब उसमें लगा देंगे हम लोग क्या, आपका फॉस्फेट, जो क्या, कोलिन मॉलिक्यूल। तो इसमें जब हम कोलिन मॉलिक्यूल लगा देंगे तो ये बन जाएगा आपका CH2 CH2N CH3 CH3 CH3। ओके, सो इसमें आपको एक प्लस साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी आपका सो मेनी बॉन्ड्स, नाइट्रोजन का एक बॉन्ड जो है वो बच गया है। ओके, तो उसको दिखाने के लिए हम लगाते हैं। सो ये जो स्ट्रक्चर है, तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लेसिथिन। और ओके, लेसिथिन इफ, अगर इसमें हम लोग फॉर एग्जांपल इन लंग्स ऑफ मैन R1 and R2 are palmitic acid। palmitic acid याद है 16:0। Therefore, it is known as, तो हमारे लंग्स में जो मिलता है that is called डाई palmitoyl
lecithin. Okay, so this is called dipalmitoyl lecithin. Understood? So ये आपका हो गया लेसिथिन का एग्जाम्पल फॉस्फो. ओके, तो लेसिथिन का कॉमन नेम क्या है? फॉस्फेटिडिलकोलिन का कॉमन नेम क्या है? लेसिथिन. अंडरस्टूड? कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे चलेंगे. सर हाँ बोलो. सर देयर इज नो क्या? OH ग्रुप. ओह सॉरी 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 सॉरी, इधर से ना. ये पिंक, इधर इधर यही वाला बोल रहे हो तो? यस सर. चलो और बोलो. सो एनी अदर प्रॉब्लम्स? देखो नहीं तो फिर हम लोग आगे चलेंगे. सर हाँ बोलो. सर स्फिंगोलिपिड्स और स्फिंगोमाइलिन सेम होते हैं ना अभी सर? उसके अभी डोंट टॉक दैट, वो जब आएगा बात करेंगे. अभी इसके बारे में बात करिए. ये दोनों में कोई दिक्कत है? नो. चलिए, सो अब हम लोग एक और स्पेशल ग्रुप ऐड करेंगे. ठीक है, सो ना एक और एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो उसमें थर्ड एग्जांपल हमारा हम लोग लेंगे सेम फॉस्फेटिडिक एसिड ले लेते हैं. ये तो हर समय होगा ही होगा. फॉस्फेटिडिक एसिड प्लस एमिनो इथानॉल. ओके, तो फॉस्फेटिडिक एसिड प्लस एमिनो इथानॉल, उसका नाम क्या हो जाएगा बताइए? अमीनो इथानॉल या इथानॉल अमाइन भी लिख सकते हो. फॉस्फेटिडिल इथेनॉलमाइन. हाँ, तो उसको आप लिख सकते हो. थोड़ा माइक पूरा जा चुका है. फॉस्फेटिडिल. ओके, दिस इज कॉल्ड फॉस्फेटिडिल एमिनो इथानॉल और फॉस्फेटिडिल ओके इथानोलामाइन. ठीक है, एंड इसका जो कॉमन नेम है ये है सेफालिन. Why? It is found in the membranes of the brain. Okay, so this is called cephalin. So it is found in the membrane of the brain. ठीक है, तो इसमें भी स्ट्रक्चर क्या होगा? इधर आप इथेनॉल अमीनो इथेनॉल लगा सकते हो. तो अमीनो इथेनॉल का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? उसके बाद CH2 CH2 NH. ओके, तो इसमें ये मैंने जो अमाइन ग्रुप लग जाएगा. ठीक है जी, तो इसमें आप इथेनॉल अमीनो इथेनॉल के जगह पर आप लिख सकते हो ब्रैकेट में CH3 CH2 NH2. ओके, सो ये आपका इथेनॉल क्या होता है? या OH होना चाहिए, इधर अमीनो ग्रुप लग गया. अगर ये एक्वाटिक कंडीशन में होगा या NH3 प्लस हो जाएगा. ये भी हमने प्लस क्यों लगाया? क्योंकि एक्वाटिक कंडीशन में है. अगर एक्वाटिक कंडीशन में नहीं होगा आप इसको ये प्लस नहीं लगाने से भी चलेगा. अंडरस्टूड? सो ये हमारा कंसेप्ट है किस चीज का. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ व्हाट? आपका सेफालिन. उसी तरह से एक और ग्रुप हम लगाएंगे आज आपको. हाँ बोलो. सर हम ये बोल सकते हैं कि फॉस्फेटिडिक एसिड के मॉडिफिकेशंस है ये सारे? Obviously, these are derived from phosphatic acids. Okay, so इसीलिए अब अगला जो हम लोग लिखेंगे फॉस्फेटिडिक एसिड प्लस सेरीन एमिनो एसिड.
ओके, सेरीन, ओके, सेरीन एमिनो एसिड। ओके, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फॉस्फाटिडिल सेरीन। ओके, एंड इसका भी जो कॉमन नेम हो जाएगा फॉस्फेटिल सेरीन, इसका भी जो कॉमन नेम हो जाएगा वो है सेफालिन। अगेन लॉजिक वही है, फाउंड इन ब्रेन सेल मेम्ब्रेन।